Good evening, all of you. My name is Sujit Kumar, and I am pursuing BTech KG. Today, I discuss about the power transmission system of tractor. So, I am firstly discuss about the introduction of power transmission system and powertrain, clutch, gearbox, differential, final drive, and axle, and then power takeoff. Now, introduction. This system transfers power from the engine to the wheels and other working parts like PTO. In first figure, this is power generating system and second one power transmission system. In power generating system, power will be generated and then power transmitted to the axle through the power transmission system. Powertrain. The complete path of power from the engine to the point of use is called powertrain. पॉइंट ऑफ यूज कहने का मतलब है कि जहां हम इससे पावर को आउटपुट के तौर पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि एक्सल, पीटीओ एंड एटीसी. नाउ दिस फिगर, फर्स्ट ब्लॉक रिप्रेजेंट द क्लच सिस्टम एंड मिडिल ब्लॉक इज रिप्रेजेंट गियर बॉक्स एंड रेयर ब्लॉक रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल यूनिट. नाउ क्लच सिस्टम. Clutch system directly power gain from the flywheel of engine and transmit to the gearbox. The main function of clutch to power engage or disengage. Need of clutch system. To smooth engage or disengage of power, clutch temporarily disengage and gear can be shifted. Directly power provide to the PTO and safety purpose. When high load condition, then clutch will be automatically disengage and provide safety to the other parts. Types of clutch system: positive clutch, claw and jaw clutch, in which all power transmit from the flywheel of engine to the clutch and no loss of power. It is used for low load. And second one, friction clutch. It is used for high load like tractor and power loss in which due to friction. Clutch system, it works on friction principle. Now single plate clutch, इसमें एक रिलीज बीयरिंग होता है, 3 क्लच फिंगर, 1 क्लच प्लेट एंड 1 ट्रांसमिशन शाफ्ट. प्रेशर प्लेट, cover plate, diaphragm plate, anti-rated spring, eye bolt, torsional spring for clutch pedal. This is the component of single plate clutch. In first figure, जब हम क्लच पैडल को प्रेस करते हैं तो रिलीज बियरिंग ट्रांसमिशन शाफ्ट में आगे की ओर प्रेस होता है, जिससे कि एंटी-रेटेड स्प्रिंग डायफ्राम प्लेट को पीछे की ओर खींचता है, जिससे हमारा जो क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील से डिसंगेज हो जाता है. एंड सेकेंड फिगर, व्हेन क्लच पैडल, जब क्लच पैडल से अपने पैर को हटाते हैं तो रिलीज बियरिंग जो है वो पीछे की ओर मूव करता है, जिससे एंटी-रेटेड स्प्रिंग आगे की ओर प्रेस होता है और वो डायफ्राम प्लेट को तथा क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ अटैच करता है, जिससे कि हमारा क्लच फ्लाई व्हील के साथ इंगेज हो जाता है. नाउ डुअल प्लेट क्लच. इसमें एक रिलीज बियरिंग होता है और 2 क्लच प्लेट होता है. एक क्लच प्लेट जो है गियर बॉक्स को ऑपरेट करने के लिए और दूसरा क्लच प्लेट पीटीओ को ऑपरेट करने के लिए होता है. इसमें 6 क्लच फिंगर होते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं. एंड डबल प्लेट क्लच, इसमें रिलीज बियरिंग 2 होता है, क्लच प्लेट भी 2 होते हैं, एक गियर बॉक्स के लिए और एक पीटीओ के लिए. क्लच फिंगर इसमें भी 6 होते हैं बट डिफरेंट साइज के होते हैं. इसमें 2 क्लच पैडल होते हैं, गियर बॉक्स ऑपरेट करने के लिए अलग क्लच पैडल और पीटीओ ऑपरेट करने के लिए अलग क्लच पैडल होता है. नाउ गियर बॉक्स. Gearbox or transmission is a speed or power changing device between the engine and driving wheel. इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच एक पावर चेंजिंग डिवाइस की तरह कार्य करता है गियर बॉक्स. एंड ट्रांसमिशन ऑयल
is used in gearbox. The grade of transmission oil is SAE 90. The function of gearbox to exchange engine power for greater torque, to exchange forward and reverse motion, and to connect and disengage the power, and also remain in neutral position of tractor. Now types of gearbox. First one is sliding mesh gearbox. In this figure, gear rail and fork, अपर शाफ्ट एंड मेन शाफ्ट, ऊपर वाले शाफ्ट को ही मेन शाफ्ट बोलना है, एंड नीचे वाला जो शाफ्ट है लोअर काउंटर या ले शाफ्ट कहलाता है, एंड देन अनदर आइडियल गियर जिस पे लगा रहता है वो रिवर्स शाफ्ट है. नाउ इन दिस फिगर सबसे पहले पावर क्लच से होकर मेन शाफ्ट में आएगा, फिर मेन शाफ्ट में गियर की सहायता से काउंटर शाफ्ट में आएगा, फिर काउंटर शाफ्ट जैसे ही रोटेट होना स्टार्ट होगा और हम फोर्क की सहायता से इस गियर को नीचे वाले गियर के साथ मेश कराएंगे, जिससे कि काउंटर शाफ्ट का जो पावर है वो फिर से मेन शाफ्ट में आ जाएगा और फिर आगे सप्लाई होगा. थर्ड वन इज सिंक्रोमेश गियर बॉक्स. इट इज़ ईजिली गियर शिफ्टिंग एट हाई स्पीड. फॉर एग्जाम्पल, इन कार यूज्ड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स. The component of synchromesh gearbox: upper shaft, lower shaft, reverse shaft, and a special synchromesh unit. It consists of blocker ring or synchronized ring, engagement gear or cone gear, coupler or sleeve, strut, and main gear. So upper figure in which सबसे पहले इसमें मेन कांस्टेंट मेश गियर को पावर दिया जाता है, और इसमें जो हब लगा हुआ है, हब जो है मेन शाफ्ट से कनेक्ट रहता है. सबसे पहले पावर तो मेन गियर को दिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ रोटेट करता है, आगे पावर जो है मेन शाफ्ट को प्रोवाइड नहीं करता है. तो इसके बाद जो इंगेजमेंट गियर लगा है और उसके बाद फिर ब्लोकर रिंग है. ब्लोकर रिंग में डॉग टीथ बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम स्लीव को आसानी से हब और इंगेजमेंट गियर से अटैच कर पाते हैं. जो स्लीव है मेरा, वो स्लीव का आधा पोर्शन जो है हब के साथ और आधा पोर्शन इंगेजमेंट गियर के साथ अटैच होता है, जिससे कि अगर मेन गियर घूमना स्टार्ट होगा तो उसकी सहायता से इंगेजमेंट गियर घूमेगा, इंगेजमेंट गियर की सहायता से स्लीव घूमेगा, और स्लीव जो रोटेट करेगा तो इसकी सहायता से हब रोटेट करना स्टार्ट होगा, और जो हब है वो मेन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है, तो मेन शाफ्ट भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा. दिस टेबल रिप्रेजेंट द डिफरेंस अमंग द स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स एंड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स. नाउ डिफरेंशियल. It change the rotation of shaft at 90 degree and transmit power to the rear wheel. डिफरेंशियल की सहायता से जो पावर हमारा गियर बॉक्स से आता है उसको 90 डिग्री के एंगल पर दोनों व्हील्स में ट्रांसफ़र किया जाता है. हम ट्रैक्टर को टर्न करते हैं तो अंदर का जो व्हील होता है वो कम डिस्टेंस कवर करता है, जबकि बाहर वाला जो दोनों व्हील होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर. ऐसा डिफरेंशियल यूनिट के कारण ही हो पाता है. नो डिफरेंशियल लॉक. It helps the tractor get out the mud and maintain a straight line. जब भी कोई ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है तो वहाँ पे डिफरेंशियल लॉक लगाना पड़ता है. डिफरेंशियल लॉक लगाने के बाद इक्वल टॉर्क रेयर व्हील में ट्रांसमिट होता है, जिससे कि ट्रैक्टर आसानी से बाहर निकल सकता है. और जब भी कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना होता है तो डिफरेंशियल लॉक लगा देने से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है. नो कंपोनेंट ऑफ डिफरेंशियल कवर सन गियर, स्टार एंड प्लेनेटरी गियर, क्राउन व्हील गियर, वेबल पिनियन गियर, हाफ शाफ्ट, स्पाइडर शाफ्ट एंड सीम्स. So in this figure also represent the all component and backlash. This term the distance between crown wheel gear and the bevel pinion gear. क्राउन व्हील गियर और बेवन पिनियन गियर के बीच का जो डिस्टेंस होता है
उसे बैकलस कहा जाता है। इट एडजस्टेड द सिम्स एडिंग और रिमूविंग। बैकलस को एडजस्ट करने के लिए जो सिम है उसे ऐड किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। नाउ फाइनल ड्राइव, गियर रिडक्शन यूनिट। फाइनल ड्राइव इज ए गियर रिडक्शन यूनिट। It is located between the differential and rear wheel. It increasing torque and decreasing speed. फाइनल ड्राइव जो है टॉर्क को बढ़ाता है और स्पीड को कम करता है, क्योंकि जब पावर छोटे गियर से बड़े गियर में ट्रांसफ़र होता है तो टॉर्क इंक्रीज होता है। द टाइप्स ऑफ फाइनल ड्राइव, फर्स्ट वन इज इनबोर्ड रिडक्शन या IBR टेक्नोलॉजी। इन दिस टेक्नोलॉजी गियर रिडक्शन यूनिट अंडर द डिफरेंशियल हाउसिंग। गियर रिडक्शन यूनिट जो है वो डिफरेंशियल हाउसिंग के अंदर होता है। इसमें पिनियन गियर और क्रोन व्हील गियर के बीच पावर का ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड वन इज आउटबोर्ड रिडक्शन या OBR टेक्नोलॉजी। इन दिस टेक्नोलॉजी गियर रिडक्शन यूनिट इज आउटसाइड ऑफ द डिफरेंशियल हाउसिंग। डिफरेंशियल हाउसिंग के बाहर इसमें गियर रिडक्शन यूनिट लगा रहता है। गियर रिडक्शन यूनिट EPI, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दिस इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी EP साइक्लिक गियर रिडक्शन यूनिट। नाउ एक्सल, द एक्सल कनेक्टेड विद द rear wheel and transmit power to the wheel. Power takeoff PTO. Power takeoff is one of the efficient point of power output in the tractor. ट्रैक्टर में एक ऐसा पॉइंट जिससे कि हम आउटपुट के रूप में पावर को यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ PTO अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्प्लाइन। टाइप 1 PTO इट हैव 6 स्प्लाइन एंड ऑल्सो इट हैव 540 ± 10 RPM। सेकेंड टाइप 2 PTO इट हैव 20 स्प्लाइन एंड 1000 ± 20 RPM। And third type 3 PTO it have 21 splines and also have 1000 ± 20 RPM. Then according to the drive, dependent PTO, semi-dependent PTO and independent PTO. Dependent PTO operated by the single clutch and semi-dependent PTO operated by the dual clutch and independent PTO operated by the double clutch. And then according to the rotational speed, ground PTO and multi PTO. Ground PTO rotate at constant speed, but multi PTO rotate at the different speed. Now overview of power transmission system. In first box, the power gain from the power generating system to the clutch, then power transmit to the gearbox middle part, and then power transmit to the rear part and differential unit, and from the differential unit power goes to the rear axle